Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 26. First of all, we will go through the previous lecture what we have done until now, and then we will continue and make some new developments. So in the last lecture we were learning how we can make some procedural language instructions in our CLIPS programming. So as we have some if then else conditions in our procedural languages, so we were using the same if then else conditions in CLIPS also, so that we will not need to run many time or to execute the rules. Then we also learn some while loop. So if we want to give many time the same instructions, or if we want to make some changes during each traversal or each round, then for that we can use some kind of loops, and this loop was which we were using is a while loop, which is also same as it is in procedural languages. And then we also learned that in CLIPS programming we can also make our own functions, user-defined functions. And then we also learned that if we want to pass some parameters, we can also do that thing, and we can also use the function within functions, we can call it, and different kind of situations. Then we also learned some loop for count. If we want to make some count, which is a built-in function, and we can make nested loops also using loop for count. And after that we learn defining some functions. There were many different kind of functions which are like commands, which were giving us some specific information. For example, the length, if we want to combine different strings values, or if we want to separate it, we want to make it uppercase, lowercase. There were different kind of options. There are a lot of it, and you can just search on Google or on a reference manual of CLIPS. You will find a lot of help, and you can use these functions for applying, or if you need it somewhere in your program. There are some assignments for you also, and you can practice using all these functions and statements and structures. So today we will move to the next lecture, and almost this will be our last lecture of CLIPS programming. You can have a basic idea, and you can learn, you can make more development inside, and then you can also study about it more in detail. So now at least you will have a basic idea how we can start, which kind of rules we can make. Then if there are some procedural requirement, we want to make some procedural programming statement like loop, or if then else conditions, then all these kind of things you can do it. Today we will learn about some global construct. If you want to make some global values, how we can initialize it, how we can do it, and then how we can call it. We will learn this, and then after that one of the important thing is file reading and writing. If we want to read the text file, and then we want to append something in the file, or if we want to write something or read from it, then we can do all these things. And this is important because if you are making a lot of struggle and making a lot of programming, and then you have not saved it somewhere, or if you have not have this facility of reading it even from some text file, then it will be a bit complicated for you not to have this feature. So at least we will have this feature in CLIPS. It is already available, but we will learn it, and there are advanced levels also. But as I told you, this is the basics, so we just learn the basics, and then we will make practice on it, and you can
continue further on. So today we will also learn about files, how to handle files. So now we will start from the first topic, which is global construct. With the global construct, global variable can be defined, set and accessed within the Eclipse environment. हम Eclipse environment के अंदर global construct के थ्रू वो एक्चुअली है क्या, वो ग्लोबल के नाम से अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये हमारे पास बिल्ट इन वैल्यूज़ हैं, फंक्शन है, इसको जब हम कॉल करते हैं तो हम वेरिएबल्स बना सकते हैं और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. Global variables can be accessed as part of a pattern matching process, but changing them does not invoke the pattern matching process. Normally हम pattern matching कर रहे होते हैं, rule based programming में हम कोई rule assert करते हैं fact list में और फिर वो जाकर rules के साथ उसकी मैचिंग हो रही होती है और जिस रूल के साथ वो मैच हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसके बाद हम उसको फायर करते हैं. अब यहाँ पर हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, हम उसको एक्सेस तो कर सकते हैं और हम पैटर्न मैचिंग क्योंकि कर रहे होते हैं. तो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल हर एक जगह से एक्सेसिबल होता है, हर एक फंक्शन से, हर एक रूल से एक्सेसिबल होगा जब तक कि आप क्लियर ना कर दें पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को. तो क्योंकि वो अवेलेबल होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि जब भी आप वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो रूल होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. द बाइंड फंक्शन इज़ यूज्ड टू सेट द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. हम अगर ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू रखना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम बाइंड के थ्रू कर सकते हैं. सिंपली बाइंड के थ्रू हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं. Global variables are reset to their original value when the reset command is performed or when bind is called for the global with no values. अब इसके और तरीके भी हैं. और तरीके ये हैं कि हम अगर रीसेट करते हैं, जब हम टॉप लेवल पे कमांड देते हैं रीसेट की, तो रीसेट में ये होगा कि जो हमने इनिशियलाइज किया होगा ग्लोबल वेरिएबल को जिस वैल्यू के साथ, तो वो वापस उसमें वो वाली वैल्यू आ जाएगी. अगर हमने कहीं पर चेंजेस किए हों ग्लोबल वेरिएबल में, हम ग्लोबल ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने रीसेट किया तो वापस इनिशियल वैल्यू पे इनिशियलाइज हो जाएगा. और दूसरा तरीका उसका ये भी है कि अगर हम बाइंड करते हैं, उसको बाइंड करते हुए हम उसमें कोई वैल्यू नहीं देते, नो वैल्यू देते हैं, तो भी वो इनिशियलाइज हो जाएगा. वो जो उसका इनिशियलाइज वैल्यू जो है हमने जो स्टार्ट में दिया होगा वो उसको मिल जाएगा. ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी रिमूव बाय यूजिंग द क्लियर कमांड और द अनडिफ ग्लोबल कमांड. अब हमारे पास दो तरीके हैं ग्लोबल वेरिएबल को रिमूव करने के. एक है क्लियर कमांड के साथ, जब हम सिंपल क्लियर कर देंगे तो उसके साथ जितने भी रूल्स हैं और जितने भी हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. लेकिन अगर हमें ज़रूरत है किसी ऐसे सिचुएशन में जहां हम क्लियर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम करेंगे क्या, हम डिफ ग्लोबल करेंगे. तो इससे होगा ये कि जितने भी डिफाइन हुए हैं ग्लोबल वेरिएबल वो सारे अनडिफाइन हो जाएंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे. अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स किस तरह है, हम किस तरह बना सकते हैं. ग्लोबल डिफ ग्लोबल के नाम से मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास डिफ़ाइन करने के लिए है. हम इसमें बताएंगे कि अब हम ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन करने जा रहे हैं. डिफ़ाइन मॉड्यूल नेम ये हमारे पास ऑप्शनल है, हम इसको डिटेल में देखते हैं. और फिर हम देखते हैं ग्लोबल असाइनमेंट हम कर सकते हैं. हमने इसमें कोई भी हमारे पास अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लोबल वेरिएबल हैं हम उसको असाइन कर सकते हैं यहाँ पर. और साथ में हम उसको कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं. अगर हम कोई ग्लोबल असाइनमेंट करते हैं, कोई
वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं एट अ टाइम। वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, और वो फिक्स वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, और हम ग्लोबल वेरिएबल को भी ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। There may be multiple diff global construct and any number of global variables may be defined in each global statement. हम बहुत सारे ग्लोबल कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के ग्लोबल वेरिएबल भी रख सकते हैं। The optional diff module name indicates the module in which the diff global will be defined. If none is specified, the globals will be placed in the current module. जो हम यहाँ पर बताते हैं जो एक्चुअली ऑप्शनल है डिफ मॉड्यूल नेम, ये हम अगर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर मॉड्यूल का नाम बताते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ इस मॉड्यूल के लिए एक्सेसिबल होगा। तो उस सिचुएशन में, लेकिन हम चूँकि हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम सिंपल बेसिक्स देख रहे हैं, तो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे और हम इस अगर कुछ भी नहीं बताएंगे तो वो हमारे पास जो करंट मॉड्यूल जहाँ पर हम कोडिंग कर रहे होंगे वो ग्लोबल वेरिएबल उसके लिए एक्सेसिबल होंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स में बी यूज इन प्लेस दैट अ लोकल वेरिएबल could be used with two exceptions. हम ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शंस आ जाती हैं सिर्फ। ग्लोबल वेरिएबल्स में नॉट बी यूज्ड एज अ पैरामीटर वेरिएबल फॉर अ डिफ फंक्शन, डिफ मेथड और मैसेज हैंडलर। हम जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम पास नहीं कर सकते एज अ पैरामीटर वेरिएबल, और जब हम क्योंकि हम डिफ फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम उसमें एज अ पैरामीटर उसको पास नहीं कर सकते। और जो डिफ मेथड्स हैं और मैसेज हैंडलर हैं इनमें भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने अभी नहीं देखे हुए डिटेल में, लेकिन ये हमें और फीचर्स देते हैं मैसेजेस को हैंडल करने के लिए, और हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं उसको बनाने के लिए हम डिफ मेथड यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल अगर आप सिर्फ इसी पे सोचें कि हम जो डिफ फंक्शन है जब हम बना लेते हैं कोई फंक्शन, तो ग्लोबल वेरिएबल को हम एज अ पैरामीटर पास नहीं कर सकते जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स को पास करते हैं। और इसकी बेसिक लॉजिक भी है, और बेसिक लॉजिक यही है कि क्योंकि वो वैसे भी एक्सेसिबल होता है वो वाला वेरिएबल, तो हम उसको क्यों फंक्शन में पास करें, क्योंकि वो फंक्शन में तो हम इस वजह से पास कर रहे होंगे कि ये वैल्यू वहाँ पर चली जाए और फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन में जाकर वहाँ परफॉर्म करे, उस कोई एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म हो, कोई प्रोसीजर उसके ऊपर परफॉर्म हो। तो अगर वो वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ग्लोबली तो हम उसको क्यों पास करें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। Global variables may not be used in the same way that the local variable is used on the left hand side of the rule to bind a value. अब एक दूसरी एक्सेप्शन ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया दो एक्सेप्शंस हैं, दो जगहों पर हम यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ये था कि हम फंक्शन पैरामीटर के तौर पे नहीं पास कर सकते, और दूसरा ये कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे उसको बाइंड नहीं कर सकते जिस तरह हम वेरिएबल करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल के साथ करते हैं। जो सिंपल वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ कर सकते हैं एज अ बाइंडिंग के लिए, जब हम कोई वैल्यू लेते हैं और उसको बाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड पे। अब उसके एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं। जिस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ है फैक्ट, और फिर हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम नॉर्मली करेंगे क्या कि हम क्वेश्चन मार्क और फिर स्टार और फिर कोई वेरिएबल का नाम देंगे और फिर स्टार होगा। तो जब हम ये देंगे तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उसकी कंसोल के ऊपर। जो क्लिप्स का शेल है हम उस पर वहाँ पर जाकर चेक कर लेते हैं कि किस तरह हम बना सकते हैं। नोट दैट दिस रूल विल नॉट नेसेसरी बी
updated when the value of global variable is changed. For example, हम ये यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं तो हमारे पास कोई रूल एक्टिवेट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, if global variable is 4 and the fact 3 is added, then the rule is not satisfied. If the value of global variable is now changed to 2, the rule will not be activated. अब इसका मतलब ये है कि अगर हम चेंजेस करते हैं ग्लोबल वेरिएबल में तो उसकी वजह से कोई रूल एक्टिवेट नहीं होगा, इवन कि अगर वहाँ पर हमारे पास वो ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हो रहा है. पहले तो एक बात ये है कि ये यहाँ पर हमारे लिए इलीगल हो जाएगा. उसकी वजह ये है कि इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते. आल्दो के हम अगर ये बना भी दें ये हमें कोई एरर नहीं देगा, हम इसको कर भी सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते. ये एक्चुअली एक किस्म की बाइंडिंग ही हो रही है. जो हम वैल्यूज़ यहाँ पर लाएंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर देगा. जब हम फॉर एग्जांपल हम फैक्ट 3 को इंसर्ट करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट 3 में. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई. उसकी हम अब जाते हैं शेल की तरफ, क्लिप्स की. अब हमने शेल ओपन कर लिया है और हम इस तरह करते हैं कि हम कोई ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं. अब हम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम क्वेश्चन मार्क और स्टार देते हैं. स्टार हम वेरिएबल बनाते हैं फॉर एग्जांपल x और इसको कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं 3. अब हम डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और हम सिंपल उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं. मैं करता हूँ y के नाम से कोई y वेरिएबल बना लेते हैं और वो हम असाइन करते हैं इसको जो हमने इससे पहले वेरिएबल बनाया है. अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें कोई ऑपरेशंस भी कर सकते हैं. हम सिंपल ऑपरेशन के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम कोई और वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल, क्योंकि ये ग्लोबल बन रहे हैं, ग्लोबल है इस वजह से हम मोस्टली ग्लोबल वेरिएबल ही बना रहे होंगे. यहाँ पर हम जी कर देते हैं. मैं कोई प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल x और फिर जो मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल y है. अब ये मैंने एक फंक्शन ऑफ किया और दूसरा मैंने डिफ ग्लोबल का क्लोज कर दिया. अब ये मैंने एंटर किया तो मेरे पास टॉप लेवल आ गया. तो इसका मतलब ये कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स थे वो डिफाइन हो गए हैं. मैं इसको अगर सिंपली प्रिंट आउट करता हूँ ये मैं सिंपल प्रिंट आउट करता हूँ CRLF. तो जो x ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी. साथ में मैं इस तरह करता हूँ कि जो बाकी वाले हैं उनको भी प्रिंट आउट कर देता हूँ.
इसको मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास मेरा मैसेज आ रहा है, मैसेज फंक्शन डिक्लेरेशन 4। यहाँ पर दोबारा इसमें t नहीं आया हुआ तो हम इसमें तो हमारे पास जो एरर आया है वो t हमने करेक्ट कर दिया। अब हम इसको एंटर करते हैं तो हम अब सिंपली आउट देख रहे हैं जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। x को इनिशियलाइज़ किया था ग्लोबल वेरिएबल 3 के साथ, तो हमारे पास 3 आ गया फर्स्ट, और फिर y को हमने असाइन किया था x ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो असाइन हो गई, और फिर z में हमने जो ग्लोबल वेरिएबल था वो दोनों को, दो ग्लोबल वेरिएबल्स को हमने ऐड किया था। चूँकि ये ग्लोबल हैं तो इस वजह से ये एक्सेसिबल होंगी हर एक रूल के अंदर जब तक कि हम इसको क्लियर नहीं कर देते। अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे फाइल्स को कि फ़ाइल हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो फाइल्स में हम जो टेक्स्ट फाइल हैं उसको भी ओपन कर सकते हैं और CLS के फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। सिंपली हम देखते हैं उसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ओपन करने के लिए द ओपन फंक्शन अलाउज अ यूज़र टू ओपन अ फाइल from the right hand side of a rule and attaches a logical name to it। अब हम राइट हैंड साइड पे अगर हैं किसी भी रूल के तो वहाँ से हम एक फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, और जब हम ओपन करेंगे तो हम उसको कोई लॉजिकल नेम देंगे। लॉजिकल नेम का मतलब ये है कि कोई हैंडलर होगा जो हैंडल करेगा, जो एक पॉइंटर होगा जो हमारे लिए फ़ाइल के अंदर मूव करेगा, उसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। वो एक पॉइंटर जहाँ पर होगा वहाँ पर वो राइटिंग उसके आगे स्टार्ट कर देगा, या हम अपेंड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं हम उसको एज ए लॉजिकल नेम उसको कहते हैं और हम उसको यूज़ करेंगे। दिस फंक्शन टेक्स 3 आर्गूमेंट्स। हम अगर ओपन का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं। द नेम ऑफ द फाइल टू बी ओपन, कौन से फाइल को ओपन करना है उसका नाम हम बताते हैं। द लॉजिकल नेम विच विल बी यूज बाय अनदर क्लिप्स, हम कोई लॉजिकल नेम बताते हैं सेकंड पैरामीटर के तौर पर। जो हम यूज़ करेंगे वो एक हैंडलर होगा, जो मैंने आपको बताया एक पॉइंटर होगा जो कि राइटिंग और रीडिंग के लिए यूज़ हो रहा होगा। IO फंक्शंस टू एक्सेस द फाइल, जो नॉर्मली एक्सेस करेगा फाइल को। द ऑप्शनल मोड स्पेसिफायर, और हम फिर मोड स्पेसिफायर बताते हैं कि किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, रीड, राइट और अपेंड, और कौन से मोड हम वो आगे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। द मोड स्पेसिफायर मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, हम इनमें से कोई एक स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये कि हम कोटेशंस के साथ इसको रखेंगे ओपन के लिए। तो अगर हम R लिखते हैं तो रीड एक्सेस ओनली, ये सिर्फ रीडिंग के लिए होगा, इसमें राइटिंग नहीं हो सकती। राइट एक्सेस के लिए अगर हम W करते हैं तो वो सिंपली राइटिंग करेगा। अगर R+ करते हैं तो रीड एंड राइट एक्सेस हो जाएगी। जो हम पॉइंटर यूज़ कर रहे होंगे, जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे होंगे, लॉजिकल वेरिएबल, तो लॉजिकल नेम जो यूज़ कर रहे होंगे हम उसको एक्चुअली राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रीडिंग के लिए भी। और ए जो है पेन के लिए है, जब हम जो पिछला डेटा है उसको क्लियर ना करना चाहें और हम उसके एंड में जाकर वहाँ पर चेंजेस शुरू कर दें तो उसके लिए होगा। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम क्योंकि फंक्शन है तो हम पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ओपन कीवर्ड है वो हम यूज़ करेंगे। फाइल नेम हम बताएंगे, ये मस्ट है, कौन से फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। फिर हम बताएंगे कोई लॉजिकल नेम, ये भी मस्ट है, इन दोनों के बगैर कोई भी फाइल ओपन नहीं होगी। और फिर हम मोड बताएंगे, ये ऑप्शनल है, हम मोड अगर ना बताएं तो भी ये काम करेगा, लेकिन वो सिर्फ रीडिंग के लिए होगा। The file name must either be a string or a symbol and may include directory specifier। हम जो फाइल नेम बताते हैं ये
नाम भी हो सकता है कोई स्ट्रिंग की फॉर्म में, ये सिंबल भी हो सकता है, और इसमें पूरे जो पाथ है वो भी आप बता सकते हैं, डायरेक्टरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बता सकते हैं। इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ यूज द बैकस्लैश एंड एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर दैट आर पार्ट ऑफ फाइल नेम मस्ट बी स्किप्ड विद अ बैकस्लैश। अगर हमारे पास कोई बैकस्लैश है या कोई और अदर कैरेक्टर है तो वो अगर फाइल के नाम में आ रहा है तो हम उसको हटा देंगे, और वहाँ उसके लिए हम बैकस्लैश यूज़ करेंगे। अगर तो आपको याद हो कि हमने देखा था कि अगर मैं कोई प्रिंट आउट लेना चाह रहा हूँ और उसमें मैं कोटेशन साथ रखना चाह रहा हूँ कि कोटेशन भी आ जाए, तो इसके लिए मैं बैकस्लैश यूज़ करता था। तो सेम हम उसी तरह बैकस्लैश यूज़ करेंगे अगर हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर साथ रखना है। The open function returns true if it was successful, otherwise false. अगर open complete हो जाता है, successful हो जाता है, तो वो true return करता है, in other case वो false return करेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम जाते हैं क्लिप्स की तरफ और वहाँ पर हम सिंपली पहले तो क्लियर कर देंगे जो हमने पिछला काम किया हुआ है ताकि वो डिस्टरबेंस ना करे। अब हम ये करेंगे कि हम ओपन करते हैं, ओपन लिखते हैं, हम कीवर्ड है और फिर हम फाइल का नाम देते हैं data.txt। ये क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो हम इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में बता रहे हैं, और फिर मैं यहाँ पर हैंडलर बताऊँगा। माई डेटा के नाम से मैंने हैंडलर बना दिया जो, और फिर मैं बताता हूँ कि कौन से मोड में ओपन होगा, राइटिंग मोड में। अगर तो मैं ये मोड नहीं बताता तो नॉर्मली ये रीडिंग मोड में ओपन होगा। मैं इसको इस ओपन कमांड को कंप्लीट करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। इसकी वजह क्या है कि अगर तो ये फाइल बना हुआ है तो ये उसको ओपन कर देगा किस जगह पर, जहाँ पर इस क्लिप्स की एग्जी पड़ी हुई है वहाँ पर, वो है बिन में। हम इसको देख लेते हैं। और अगर तो इस तरह नहीं है तो ये ख़ुद से बना लेगा, वो फाइल एग्जैक्टली इसी नाम के साथ बना देगा। अब मैंने क्योंकि ये बनाया नहीं है, ये वाला फाइल टेक्स्ट के नाम से मैंने कोई फ़ाइल नहीं बनाया, मैं अगर सिंपली जाऊं सी में तो वहाँ पर मुझे ये ऑलरेडी मिल जाएगा। हम जाते हैं सी में, फिर हम जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में, शायद हमारे पास यहाँ पर है क्लिप्स, यहाँ पर आ गए। हम जाते हैं बिन में, तो बिन में हम देखते हैं ये बन गया है टेक्स्ट के नाम से, और इसका साइज़ 0 है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी अभी तक राइट नहीं किया। और ये हमें बता भी रहा है कि ये हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इसको एक और प्रोग्राम ओपन किया हुआ है और ना हमें इसमें कुछ करना चाहिए। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ये तो आपको समझ आ गई कि अगर हम बनाते हैं हम ओपन करते हैं तो अगर फाइल बना हुआ है तो ठीक है, उसको वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर एग्जी पड़ी हुई है इसके, और अगर तो वो वहाँ पर नहीं है तो फिर हमें फुल पाथ बताना पड़ेगा। और अगर तो वो बना हुआ है ऑलरेडी तो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ तो वो खुद से बना देगा W के साथ। अब हम करेंगे ये कि जब भी हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों को क्लोज़ करना पड़ेगा, और स्पेशली हमें इसके हैंडलर को भी क्लोज़ करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लोज़ कमांड, और हम पहले इसको थोड़े से प्रेजेंटेशन में जाकर देख लें कि क्या चीज़ है वो, फिर हम आगे जाकर इसको यूज़ भी कर लेते हैं। द क्लोज फंक्शन क्लोज अ फाइल स्ट्रीम प्रीवियसली ओपन विद द ओपन कमांड। हम जो ओपन के साथ जो चीज़ें हम बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैंडलर बना लेते हैं जो हमारे पास लॉजिकल नेम है वो बनाते हैं, और साथ में हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो
इन दोनों चीज़ों को क्लोज करने के लिए हम क्लोज की कमांड यूज़ करते हैं। द फाइल इज स्पेसिफाइड बाय अ लॉजिकल नेम प्रीवियसली अटैच्ड टू द डिजायर्ड स्ट्रीम। हम क्योंकि ये स्ट्रीमिंग हो रही होगी फाइल के अंदर, तो इस वजह से हम इसको लॉजिकल जो वैल्यू हमने दी हुई है, नेम दिया हुआ है, उसके थ्रू हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज फिर हम लॉजिकल नेम बताते हैं और वो फिर क्लोज हो जाएगा, वो जो स्ट्रीमिंग है। इफ क्लोज इज कॉल्ड विदाउट आर्गुमेंट ऑल ओपन फाइल विल बी क्लोज। अगर हम क्लोज सिंपल क्लोज लिखते हैं और उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं देते, तो वो सारे जो ओपन फाइल्स हैं उन सबको क्लोज कर देगा। The user is responsible for closing all the files open during execution. Normally ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको क्लोज कर दे। If a file are not closed, the content are not guaranteed correct. However, Eclipse will attempt to close all open file when the exit command is executed. अब अगर तो हम इसको क्लोज नहीं करते तो होगा ये कि जो हमने अगर राइटिंग की हुई है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो करेक्ट ना हो, वो सही तरीके से राइट ना हो सके। और क्लिप्स जो है नॉर्मली हम जब उसका शेल क्लोज करते हैं तो एग्जिट की कमांड कॉल होती है, और जैसे ही वो कॉल होती है तो वो सारे ओपन फाइल्स को क्लोज करने की कोशिश करता है। द क्लोज फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी फाइल वर सक्सेसफुली क्लोज, अदरवाइज फॉल्स। अगर तो सक्सेसफुली क्लोज हो जाते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अब हम इस कमांड को परफॉर्म कर लेते हैं। हम सिंपल क्लोज अगर लिखें और साथ में मैं बता दूं माय डेटा जो मैंने बनाया हुआ है लॉजिकल नेम, इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा देता हूं तो ये मुझे फॉल्स देगा। उसकी वजह ये कि ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो जब ये क्लोज हो चुका है तो इस वजह से वो हमें अब फॉल्स दे रहा होगा। और अगर मैं सिंपली क्लोज करता हूँ तो ये जो फाइल वगैरह जो भी फाइल है हमारे पास उनको क्लोज कर देता है। लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्लोज किया हुआ है हमारे डेटा को, तो ये ऑलरेडी हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। ऐसी सिचुएशन में ये बाकी सारी चीज़ों को क्लोज कर देगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ, और वो ये है कि हम इसके अंदर कोई राइटिंग कर सकें। The function printout allows output to a device attached to a logical name. Printout जो हम यूज़ करते थे उसमें हम जो लॉजिकल नेम यूज़ करते थे नॉर्मली वो होता था T। हम जो भी यूज़ कर रहे होते थे प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट के लिए हम कोई लॉजिकल नेम या हैंडलर यूज़ करते थे। हम नॉर्मली हम उस वक़्त हमने इसको डिटेल में नहीं देखा था क्योंकि हम फाइल्स के मुतालिक नहीं पढ़ रहे थे। तो अभी क्योंकि हम फाइल्स की तरफ आ गए हैं तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो प्रिंट आउट है ये एक फंक्शन है और इसको एक लॉजिकल नेम चाहिए होता है। और अगर वो लॉजिकल नेम हम नहीं देते, वो करता क्या है कि वो जो हमारे पास बैकएंड पे जो चल रहा होता है वो std out के नाम से होता है और वो उसको हैंडल कर रहा होता है। उसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं वो उसको प्रिंट करने की कोशिश करता है स्क्रीन के ऊपर। अब वो अटैच होता है t के साथ। जो हम प्रिंट आउट t करते थे तो उसमें वो t के साथ अटैच होते थे। द लॉजिकल नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड द डिवाइस must have been prepared previously for output. File must be opened first. The send output to std output use a t for the logical name. हम जब मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम जब आउटपुट के लिए यूज़ करते थे, जब हम चाहते थे कि स्क्रीन के ऊपर आ जाए, कमांड लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाए,
तो उसके लिए हम प्रिंट आउट टी यूज़ करते थे। तो जो टी था वो एक्चुअली लॉजिकल नेम था प्रिंट आउट के लिए। अब अगर हम फाइल के ऊपर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो फाइल के लिए हम उसका लॉजिकल नेम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा। अब इसका सिंटैक्स क्या है? प्रिंट आउट, हम सिंपल प्रिंट आउट बताते हैं और लॉजिकल नेम बताते हैं कि कौन सा लॉजिकल नेम है, और फिर कोई अगर एक्सप्रेशंस हैं तो वो साथ बता देते हैं। एनी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन में बी प्लेस इन प्रिंट आउट टू बी प्रिंटेड। हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, हम क्या प्रिंट आउट करना चाहते हैं। ईच एक्सप्रेशन इज़ इवेलुएटेड एंड प्रिंटेड with no space added between each printed expression। अगर हम डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस देते हैं तो वो सारे प्रिंट आउट पे चले जाएंगे। अगर तो हम उसके अंदर स्पेस नहीं देते तो वो स्पेस के बगैर हो जाएंगे सारे। The symbol CRLF used as an expression will force a carriage return new line and may be placed anywhere in the list of expression to be printed। अब क्योंकि ये हम डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस देंगे यहाँ पर, वो अगर हम देते हैं तो वो सारे राइटिंग के लिए चले जाते हैं फाइल के ऊपर। अब फाइल के लिए वो जा रहे हैं, अगर हम CRLF लिखते हैं जो कैरेज रिटर्न के लिए है, तो वो भी एग्जैक्टली उसी तरह करेगा कि जब वो इस लाइन तक पहुंचेगा और उसको ये मिलेगा तो वो ये कमांड परफॉर्म कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इस तरह के अगर कोई और है न्यू लाइन के लिए या टैब वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो मोस्टली सारे के सारे परफॉर्म हो जाते हैं। वो इन राइटिंग अगर हैं तो वो उनको उसी तरह राइटिंग उसकी कर देगा। द प्रिंट आउट फंक्शन स्ट्रिप्स quotation mark from around string when it prints them। string है तो फिर हम करते ये हैं कि उसके साथ quotations आ जाएंगे, वो strip कर देंगे उसके साथ। this function has no return value, और इसकी कोई return value नहीं है, इसकी कोई confirmation नहीं है कि हम ये देख लें कि क्या राइटिंग सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर तो आपने सही कोटेशंस के अंदर दी हुई हैं सारी चीज़ें तो वो ठीक हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगी। हम उसको जब रीड करेंगे तो हमें फिर समझ आएगी कि क्या वो ठीक है कि नहीं। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम किस तरह उसके अंदर राइटिंग कर सकते हैं। अब मैं करूँगा ये कि मैं ओपन करता हूँ data.txt जो हमने पहले ही बना लिया था। अब उस तरह से वही चीज़ हम ओपन करते हैं। माय डेटा उसका हैंडलर हो गया, और साथ में मैं अब ये करता हूँ कि R+ में इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका मोड बता दिया मैंने कि मैं इसके अंदर राइटिंग करना चाह रहा हूँ और साथ में रीडिंग भी करना चाह रहा हूँ। अब ये मेरे पास ट्रू रिटर्न हो गया, मतलब ये कि मैंने ओपन कर लिया है फाइल को। अब मैं इसमें सिंपली प्रिंट करूँगा। ये सारे काम मैं रूल के अंदर भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपल रूल में ये वाली एग्जैक्टली ये वाली कमांड्स परफॉर्म करना चाहूँ तो वहाँ पर भी हो सकते हैं। प्रिंट आउट करूँगा मैं। अब मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ पर टी दूँ, मैं दूँगा माय डेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम टी यूज़ करते थे इस वजह से कि वो टी जो था वो स्क्रीन के लिए यूज़ हो रहा होता था। वो एसटीडी आउट का जो हमारे पास हैंडलर है उसको यूज़ कर रहा होता था, उसके साथ अटैच होता था। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं। मैं देता हूँ एक्सप्रेशन रेड ग्रीन, ये मैंने एक्सप्रेशन दिया। हमने एंटर किया तो हमारे पास कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आई, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये कमांड ठीक है और इसने राइटिंग कर ली होगी। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम जाएंगे दोबारा प्रेजेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि उसके क्या ऑप्शन है।
The read function allows a user to input information for a single field. All of the standard file rules, multiple symbols must be embedded within quote apply. हम रीड के थ्रू जो भी हमने फाइल के अंदर राइटिंग की होगी या अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर राइटिंग है तो हम उसको रीड कर सकते हैं. ये करेगा क्या, ये सिंपल एक वर्ड को रीड कर सकता है, एक सिंबल को रीड कर सकता है. जो हमने इससे पहले देखा था कि रीड नॉर्मली जब हम रीड यूज़ करते थे वो कीबोर्ड से जो भी उसको इनपुट आ रही होती थी तो उसको वो रीड करता था, और वो अगर स्पेस आ जाए या कोई भी हमारे पास नॉन प्रिंटेबल वैल्यू आ जाए तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाता था. अब इस सिचुएशन में भी इसी तरह ही होगा. हम रीड करेंगे तो एक एक वैल्यू को रीड कर सकते हैं, एक एक वर्ड को रीड कर सकते हैं. इसका सिंटैक्स क्या है, रीड और लॉजिकल नेम. हम उसको बताते हैं कि जो भी लॉजिकल नेम है वो फाइल के लिए जो ओपन किया था हमने वो जब हम यूज़ कर रहे थे तो हम सेम वही यूज़ करेंगे. Where logical name is an optional parameter, if specified, read tries to read from whatever is attached to the logical file name. जो रीड है वो नॉर्मली रीड करेगा लॉजिकल फाइल के साथ जो अटैच होगा, और अगर लॉजिकल फाइल हम बताते हैं तो वो नॉर्मली अटैच होता है उस फाइल के साथ जिसको हमने ओपन किया हुआ है. If a logical name is T or is not specified, the function will read from std in. अब अगर हम लॉजिकल नेम नहीं देते या अगर हम T देते हैं तो उस सिचुएशन में वो जो std in हैंडलर है उससे जो भी आ रहा होगा उसको एज अ रीड देख रहा होगा. If an end of a file NEOF is encountered while reading, read will return the symbol end of file EOF. अब अगर हम रीड करते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास EOF आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये हम एंड पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद कोई भी वैल्यूज वहाँ पर नहीं है. If a error are encountered while reading the string, 3 स्टार्स आ जाएंगे, और रीड एरर के नाम से अगर इस तरह के कोई मैसेज आ जाता है तो वो हमारे पास एरर होगा. हम वहाँ से आगे रीड नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन एरर जो है वो हमारे पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा. अब हम इसको रीड करने के लिए हम करते क्या हैं, हम जाते हैं यहाँ पर और इसको रीड करेंगे. तो मैंने रीड की कमांड दी और इसके बाद मैं यहाँ पर माय डेटा बताऊंगा. माय डेटा जो मेरा लॉजिकल नेम है उसको मैंने बता दिया. मैंने रीड माय डेटा के नाम से मैंने कमांड दे दी. अब हम इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास रीड आ जाएगा जो पहला हमारे पास वैल्यू है. और क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमने एंटर किया था रेड और ग्रीन के नाम से, तो क्योंकि दरमियान में स्पेस था तो जैसे स्पेस आया तो उसने वहाँ से रिटर्न कर दिया, तो एक वैल्यू को उसने एंटर किया. अब हम दोबारा करते हैं तो ये हमारे पास इससे आगे जाएगा और हमें ग्रीन दे देगा. और अब हम इसको दोबारा अगर हम बताते हैं रीड डेटा तो ये हमें एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर देगा. मतलब ये कि अब इससे आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है. हम अगर दोबारा करते हैं तो ये सेम इसी चीज़ को रिटर्न करेगा कि एंड ऑफ फाइल हो गया है. तो इसका मतलब ये कि हम बिल्कुल अब एंड पे चले गए हैं. हम अगर अब राइटिंग करना चाहते हैं तो हम उससे आगे राइटिंग कर सकते हैं. अब हम इससे आगे आप
और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं, हम अपेंड भी कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम सिंपली अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। एक चीज़ आपको और भी बतानी थी, अगर जब तक हम क्लोज़ नहीं करते तब तक जो हमने राइटिंग की होती है वो सेव नहीं होती। हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं, जो प्रिंट आउट हमने किया होता है, जो चीज़ें हम फाइल में रखना चाह रहे हैं, वो तब तक नहीं होंगी जब तक वो क्लोज़ नहीं हो। अगर हम क्लोज़ कर लेंगे तो तब उसके बाद हम उसको रीड कर सकेंगे। तो इस वजह से ये आपने ख्याल रखना है कि हम जैसे ही उसको राइटिंग शुरू कर लें तो उसके बाद क्लोज़ कर लें, और फिर हम जब दोबारा ओपन करेंगे तो फिर हम रीड कर सकेंगे उसको। अब हम जाते हैं रीड लाइन की तरफ। हम सेम उसी तरह जिस तरह हम रीड लाइन में स्पेसेस दे सकते थे, सेम इस तरह यहाँ पर भी हो सकता है। द रीड लाइन फंक्शन इज सिमिलर टू रीड फंक्शन बट इट अलाउज अ होल स्ट्रिंग टू बी इनपुट instead of a single field. Normally read will stop when it encounters a delimiter. हमें ये पता है कि जब read आता है फंक्शन तो वो जैसे ही कोई delimiter आ जाता है तो वो वहाँ पर stop हो जाता है। The read line function only stop when it encounters a carriage return, a semicolon or an end of file. अगर तो फाइल के अंदर carriage return है वो आ जाए, या सेमीकोलन आ जाए, या एंड ऑफ फाइल आ जाए, तो तब वो स्टॉप हो जाता है, वरना वो रीडिंग कर रहा होता है। एनी टैब्स और स्पेस इन इनपुट आर रिटर्न बाय रीड लाइन एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। हम अगर रीड लाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्पेसेस हैं, जो टैब है, वो भी एग्जैक्टली उसी तरह आ जाएंगे। द रीड लाइन फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, और जब ये रिटर्न करेगा तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। मतलब ये कि इसकी जो आउटपुट होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रही होगी। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपली रीड लाइन हम बताते हैं और लॉजिकल नेम बताते हैं। तो इस लॉजिकल नेम जहाँ पर होगा उससे आगे जितना भी होगा वो एज अ लाइन, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। वेयर लॉजिकल नेम इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर, हमें ये पता है कि अगर हम ये ना दें तो फिर वो अटैच हो जाता है टी के साथ, और टी नॉर्मली अटैच होते हैं हमारे पास जो लॉजिकल वैल्यू है उसकी stdin, तो उसके साथ अटैच हो जाता है। एज विद द रीड लाइन फंक्शन, इफ एन एंड ऑफ फाइल इज इनकाउंटर, रीड लाइन विल रिटर्न द सिंबल ऑफ एंड ऑफ फाइल। हमें ये पता है कि जब हम एंड पे पहुंच जाएंगे तो एंड ऑफ फाइल हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, और अगर कोई एरर आता है तो हमारे पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। अब हम सिंपली देखते हैं इसको कि कैसे हम बना सकते हैं इसको। अब हम ये करते हैं कि जो हमने फाइल ऑलरेडी बनाई है उसको हम ओपन करते हैं। ओपन हम इस कमांड के साथ कर देंगे, ओपन data.txt के नाम से जो हमने बनाया था, और माय डेटा उसका हैंडलर हो गया, लॉजिकल नेम हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब ये कि हमने इसके अंदर जो राइटिंग की थी वो आ जाएगी एग्जैक्टली उसी तरह, क्योंकि हमने अभी तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। रीड लाइन कर देंगे। अब मैंने रीड लाइन किया तो मेरे पास आया रेड और ग्रीन जो मैंने इनपुट किया था, तो वो आ गया, लेकिन कोटेशंस के अंदर, मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर आ गया। अब आप ये जहन में रखें कि अगर हम कोई इस तरह का सिस्टम रखना चाह रहे हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें कि कौन सा रूल वो बनाना चाहता है, उसका रूल का नाम क्या होना चाहिए, फिर उसके इफ़ कंडीशन जो है लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, फिर राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए। अगर तो ये हम लेते हैं यूज़र से रन टाइम पे, और उसको हम राइटिंग उसकी कर देते हैं फाइल के अंदर, और फिर वो फाइल से रीड करते हुए रीड लाइन के थ्रू हम वो इधर लाते हैं टॉप लेवल पे, तो वो एज अ रूल आ जाएगा, वो रूल सेव हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि उसके अंदर ही कोटेशंस होंगे और इसको रिमूव हम कर सकते हैं बड़ी इजीली।
हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उसके थ्रू हम ये कोटेशंस रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम ये रिमूव कर देंगे तो हम बड़ी इजीली डिफरेंट रूल्स को ऑनलाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा करता हूँ रीड लाइन, तो मेरे पास एंड ऑफ फाइल का मैसेज आ जाएगा कि मैं एंड ऑफ फाइल पे पहुँच चुका हूँ, इससे आगे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हम दोबारा जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। रीनेम के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है और ये भी काफ़ी यूज़फुल है अगर हम चेंज करना चाहते हैं जो हमने नाम रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली किसी रीज़न से हम इसको चेंज करते हैं। हम सेव एज भी कर सकते हैं, हमारे पास वो वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है। द रीनेम फंक्शन इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल। हम सिंपली नाम को चेंज करते हैं। रीनेम ओल्ड फाइल नेम हम देते हैं इसमें, और हम फिर न्यू फाइल नेम बताते हैं, दरमियान में स्पेस होगी। बोथ ओल्ड फाइल नेम एंड न्यू फाइल नेम मस्ट आइदर बी a string or a symbol and may include डायरेक्टरी स्पेसिफायर। अगर हम किसी डायरेक्टरी को बताना चाहते हैं तो वो डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए इसके अंदर, वरना तो ये नॉर्मली जो यहाँ पर जो क्लिप्स की एग्जी पड़ी हुई है वहाँ पर ये बना देगा, वहाँ पर वो रीनेम कर देगा। तो हम ओल्ड नाम बताते हैं और फिर साथ में नया नाम बताते हैं, और सेम वही रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे जो हम किसी भी फाइल के नाम के लिए रखते हैं। अगर वहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो हम वो बैकस्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। द रीनेम फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ़ इट वाज सक्सेसफुल, अदरवाइज फॉल्स। अगर तो ट्रू है, अगर तो सक्सेसफुल हो गया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना तो फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसके छोटे से प्रोग्राम को देखते हैं। अब इसमें हम फाइल को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम सिंपली रीनेम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसको चेंज करें, हम पहले इसको क्लोज कर देंगे। पिछले को हमने क्लोज नहीं किया था, इस वजह से अब हम क्लोज कर देंगे। तो अब सारे हैंडलर फ्री हो गए हैं। अब अगर हम उसको रीनेम करना चाहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ओल्ड नेम देते हैं। ओल्ड नेम है data.txt और जो न्यू नेम है वो मैं देता हूँ test.txt। मैंने इंटर किया, इसने मुझे बताया कि ट्रू। तो ट्रू का मतलब ये कि वो जो नाम था वो चेंज हो गया। अगर मैं जाऊँ देखूँ वहाँ पर बिन के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर data.txt के नाम से कोई फाइल अब नहीं है। और वजह क्या है, क्योंकि वो मैंने रीनेम कर दिया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वो रेड और ग्रीन जो मैंने राइटिंग उसके अंदर की थी वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई है, और इसका नाम अब चेंज हो गया है, text.txt के नाम से हो गया। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म की राइटिंग करते हैं, और अब मैं इसको ओपन करता हूँ, टेस्ट के नाम से, और मैं सिंपली इसको रीड करता हूँ। तो अब आप देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तो ऑलरेडी था रेड ग्रीन, द लाइट इज़ ग्रीन, ये मैंने अभी इसके अंदर चेंजेस किए हैं तो वो भी आ गई हैं एग्जैक्टली। और ये आप देखें कि कोटेशन के साथ है, और आखिर में मैंने स्पेस दिया था तो वो स्पेस भी कोटेशन के अंदर आ गई हैं। अब अगर मैं दोबारा इसको रीड लाइन देता हूँ तो वो एंड ऑफ फाइल बताएगा कि एंड पे हम पहुँच चुके हैं। रिमूव के नाम से भी हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और रिमूव क्या करेगा, द रिमूव फंक्शन इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल। अब अगर हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली कमांड लाइन से कर सकते हैं, टॉप लेवल से कर सकते हैं। रिमूव कीवर्ड है और हम फाइल नेम बताते हैं तो वो फाइल रिमूव हो जाएगी। द फाइल नेम मस्ट बी आइदर बी ए स्ट्रिंग और अ सिंबल। हमें ये पता है कि वो
या तो स्ट्रिंग होना चाहिए या सिंपल होना चाहिए, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो बैकस्लैश के साथ यूज़ होने चाहिए। द रिमूव फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ़ इट वाज सक्सेसफुल, अदरवाइज फॉल्स। अगर तो रिमूविंग डिलीट करने उस फाइल को सक्सेसफुल है तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ये बहुत सिंपल से कमांड है, इसको आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे, और आज के लेक्चर के साथ हम क्लिप्स को भी कंक्लूड करेंगे। जो हमने अब तक देखा क्लिप्स की बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। हम ये देखना चाह रहे थे कि क्लिप्स एक्चुअली काम किस तरह करता है। हमारे पास कोई फैक्ट लिस्ट है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के तौर पे काम कर रही होती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पे हमारे पास जो रूल है जहाँ पर हम रूल्स रखते हैं, फिर हमारे पास एजेंडा है। एजेंडा में हम देखते हैं कि कौन सा रूल है जो एक्टिवेट हो रहा है, जो कि नॉलेज बेस से आ रहा है, जो नॉलेज बेस एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी थी। तो वहाँ से आता है, वो एक्टिवेट होता है क्योंकि हमारे पास फैक्ट आ गए हैं। तो फैक्ट मैच हो जाता है, एग्जैक्टली पैटर्न मैचिंग हो जाती है, और वो जो चीज़ है वो एजेंडा में आ जाती है। और एजेंडा में हमें नज़र आ रहा होता है कि कौन सा रूल है जो एक्टिवेट हुआ है और किस फैक्ट की वजह से हुआ है। अब ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं, और फिर हम जब रन करते हैं तो उससे वो फायर हो जाता है। जो भी रूल है जो एक्टिवेट हुआ है वो फायर हो जाता है, और वो अपने एक्शन की तरफ जाता है, जो एक्शन उसने परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम सिंपल स्ट्रिंग्स किस तरह बना सकते हैं, हम इंटीजर्स किस तरह बना सकते हैं, वेरिएबल्स किस तरह बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हमने देखे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के। फिर हमने और छोटे छोटे फंक्शंस देखे कि जो इस तरह हम वाइल लूप हमने देखा, हमने इफ़ देन एल्स कंडीशंस देखे। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो थी जो इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए वो देखें। हमने रूल्स बनाने का तरीका देखा कि रूल्स हम किस तरह बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये भी देखा कि हम फाइल के अंदर राइटिंग किस तरह कर सकते हैं, हम उधर से रीडिंग किस तरह कर सकते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और बेसिक थी जो हमने सीख ली। ये क्लिप्स आपके लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें फैक्ट्स के तौर पर काम कर रही होती हैं, और हमने ये देखा था कि ये क्यों अहम है, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ को रन नहीं करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो जब फैक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है तो फिर कोई रूल एक्टिवेट ना हो, क्योंकि हमने जर्नल सिनेरियो में देखा था कि ह्यूमन भी इसी तरह ही कर रहा होता है, तो क्यों ना सिस्टम जो है वो भी इसी तरह ही करे। तो आज के लेक्चर के साथ हम क्लिप्स को भी कंक्लूड कर देंगे, और आगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें मशीन लर्निंग है, फिर सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग है। साथ में हमारे पास और डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स हैं लर्निंग के लिए, हम उनको देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। हम आज के लेक्चर को यहाँ पर ही उसका इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।